Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and the thoughts result in actions. Do you know whose statement is this? This is the statement of Dr. APJ Abdul Kalam. Good morning, students. This is Mr. PJ Titus from Salem classes. Today's lecture will be unit number 4, Transcending Boundaries. Unit number 4 and chapter number 5, The People's President. This is for class 7th and from the book of English Fari. As I told you, this is chapter number 5. In this chapter, we are going to discuss about little bit about Dr. APJ Abdul Kalam, about his family background and about his studying and about his work as he was the scientist, what he has done for the country, and also when he became the president and during that time, so what he did and how he was loving to the children. All the things we are going to discuss here. If it will be not long, so I will make this video within one video. Otherwise, it will be 2 lectures and there will be 2 different videos. So, if you have the book, just you have to turn your book, page number 63. Okay, so before entering to this lecture, I would like to request you, if newly you are watching this video lecture, please subscribe this channel and share to your friends and to your classmates. At the same time, if you see the red bell icon, you press that also. So usually how I do, I would like to do the same way. Those who are fully understandable English, they can hear the lecture, and those who are not understanding fully English and those who are willing to get help of translation in Hindi, and then they also going to be benefited. And I request them, you have to hear it very clearly and understand. So, okay then, let's begin. Dr. APJ Abdul Kalam was an unusual personality who made missiles but talked of peace, education for all and the empowerment of students, as he was convinced that the young generation was the hope for the future. In his own word, I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision, developed India. This is exactly what Dr. APJ Abdul Kalam did, igniting young mind to learn, to question and dream of fulfilling their goal in life. यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक अनयूजुअल पर्सनालिटी होता है, जो व्यक्ति के मिसाइल को बनाता है और ऊपर से यही कहता है कि पीसफुली रहना चाहिए, यानी मिसाइल को बनाता भी है और पीस में रहने के लिए सुझाव भी देता है। इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो पर्सनालिटी है अनयूजुअल। कोई व्यक्ति यदि मिसाइल को बनाता है तो उसके अंदर यह होना चाहिए कि भाई जितने हो सके उतने मिसाइल दागो,
जितने हो सके उतने मिसाइल मतलब आप ब्लास्ट करो, यानी जितने हो सके उतने रॉकेट आप छोड़ो, दूसरे देश को तबाह करो। इस प्रकार की बातें उन्होंने नहीं कही है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है ये एक एम्पावरमेंट स्टूडेंट्स के लिए है, और वो इस बात को यंग जो जनरेशन है उनको मतलब इसके ऊपर कहते हैं, और एजुकेशन ही उनके भविष्य के लिए एक आशा है। ठीक है, एजुकेशन ही उनके भविष्य के लिए एक आशा है। ये उनकी खुद की एक शब्द है। वो इस प्रकार कहते हैं, मैं जो लैंप होता है यानी बत्ती, ज्ञान का बत्ती को हमेशा जलाता रहूँगा। ठीक है, ज्ञान की बत्ती को हमेशा जलाता रहूँगा, और उसी के चलते मैं अपनी दर्शन को साकार करूँगा, और उसी दर्शन जो डेवलप्ड इंडिया के लिए मेरा है। ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना कि वो यही कहते हैं कि मैं जो ज्ञान का जो दीप है उसको हमेशा के लिए जलाऊंगा, और उस अचीवमेंट के ऊपर आगे बढ़ूंगा जो भारत के डेवलपमेंट के लिए दर्शन मेरे साथ है। तो ये एक एक्सीलेंट वर्ड है, स्टेटमेंट है, जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया, और ख़ास करके यही बातें ही वो क्या करना चाहते हैं, जो यंग जनरेशन होता है उनके अंदर भरने के लिए चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो भरने के लिए चाहते हैं, उनके अंदर वो ड्रीम, वो गोल, ये सभी फुलफिलिंग अवस्था में वो देखना चाहते हैं। ठीक है, वो देखना चाहते हैं। Dr. Kalam was born in 15 October 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu. He was the youngest sibling of 4 brothers and sisters. His father owned a ferry while his mother was a housewife. The family lost much of its property and wealth when Dr. Kalam was young, and he sold newspaper to supplement the family's income. Although he was an average student at a school, he took great interest in mathematics and was developed to his studies. He completed his schooling from Squats Higher Secondary School, Rameswaram, and went on to attend St. Joseph College, Tiruchirappalli, where he graduated in physics. He then went to study aerospace engineering at the Madras Institute of Technology. After his graduation, he joined the Aeronautical Development Establishment of the Defence Research and Development Organization, DRDO, as a scientist. तो यहाँ पे हम उनके जन्म के बारे में देखते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को उनकी जन्म होता है, और वो भी रामेश्वरम नाम का एक छोटा सा शहर है। और मुझे सौभाग्य मिला था एक बार रामेश्वरम जाने का और इनके मकान देखने का। मैं करीब 2 बार किसी भिन्न कार्य के चलते मैं रामेश्वरम गया हूँ, और उनका मकान को भी देख करके आया हूँ। तो ये तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। और जैसे कि ये एक यंगेस्ट, मतलब उनके घर पे 4 भाई है और एक सिस्टर है, उन्हीं बीच में ये एक यंग लड़का थे। उनके फादर जो है एक फरी, और उनके मदर जो है एक हाउसवाइफ है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके फैमिली जो है, जब वो यंग उम्र में थे, यानी आपके जैसे छोटे बालक की अवस्था में थे,
ऐसे समय पर उनका घर परिवार के बहुत से चीज़ जो है मतलब लॉस्ट हो गया था, यानी बहुत से चीज़ वो खो चुके थे। धन संपत्ति मतलब कहा जाए तो उनके जो प्रॉपर्टीज़ में कमी आ गई थी, उनके धन संपत्ति में कमी आ गई थी। तो इसलिए अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार में कुछ एडिशनल मतलब इनकम को देने के लिए वो न्यूज़पेपर को भी मतलब बेचा करते थे। लेकिन वो एक एवरेज स्टूडेंट थे स्कूल में। उनके जो इंटरेस्ट है खास करके मैथमेटिक्स के ऊपर उनके विशेष रूप से और उनकी रुचि थी। और साथ ही साथ वो स्कोचर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल जो है रामेश्वरम में, वहाँ पे अपने हाई स्कूल के जो पढ़ाई वहाँ पे पूरी करने के बाद वो फिर तिरुचिरापल्ली नाम के एक जगह में सेंट जोसेफ कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे फिजिक्स से ग्रेजुएट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स से ग्रेजुएट करते हैं। तो उसके बाद फिर वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो मद्रास इंस्टीट्यूट में है टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं और जा कर के वहाँ से भी ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है DRDO, वहाँ पे एक साइंटिस्ट के रूप में वो कार्य करते हैं। He was great learner who had an insatiable curiosity, a zest for life and optimism which made him reach out of the impossible. He was closely associated with India's civilian space program and military missile development efforts. तो यहाँ पे हम और एक चीज़ को देखते हैं कि ये बहुत ही सीखने की इच्छा रखने वाले के व्यक्ति थे। क्या? सीखने की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति थे। उनके अंदर क्यूरोसिटी बहुत थी। क्यूरोसिटी का मतलब है एंडलेस क्यूरोसिटी जिसको कहा जाता है। क्यूरोसिटी का मतलब है जो ज़्यादातर मतलब लाइफ में कुछ सीखने का मतलब इच्छा रखता है, कुछ आशावादी रहता है, यानी कुछ प्राप्त करने का मन उसके अंदर होता है। और यही जो मतलब उनका मनोबल जो है, यही जो उसके मनोभाव जो है, आगे चल कर के इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने में उनको सफल करवाती हैं। और वो इंडिया का जो सिविलियन स्पेस प्रोग्राम है, मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट, वो यहाँ पे करते हैं। He thus became to be known as a missile man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology। तो इसीलिए फिर उसके बाद उसको मिसाइल मैन के रूप में जाना गया, क्योंकि उनके जो कार्य था जो डेवलपमेंट के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के ऊपर। As Dr. Kalam himself acknowledged, I learned leadership from 3 great teachers। वो इस प्रकार कहते हैं कि वे 3 विशेष टीचर के द्वारा और लीडरशिप को सीखा है। सबसे पहली बात है डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धावन एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। दिस वॉज द टाइम ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फॉर मी। वो कहते हैं कि उनके द्वारा उन्होंने कुछ प्रेरणा को प्राप्त किया, उनके द्वारा उन्होंने मतलब कई सारे जो नॉलेज को उन्होंने गैदरिंग किया। He believed in the progressive growth of science and felt that NATO technology was a field of the future that will replace microelectronics and many fields
with tremendous application potential in the area of medicine, electronic and material science. उनके जो विश्वास है साइंस के ग्रोथ के ऊपर है और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, क्योंकि वो कहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है और वो फ्यूचर में ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक को क्या करेगा, विभिन्न और फील्ड के अंतर्गत ट्रेमेंडियस एप्लीकेशन रूप में वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा। तो साथ ही साथ इसमें एक डेवलपमेंट भी होगी मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मटेरियल साइंस। इन सभी को डेवलपमेंट करने का, इन सभी को डेवलपमेंट करवाने का विश्वास उसके अंदर था और ये सभी चीज़ें भी बढ़ेगी और भारतवर्ष में ये फैलेगा। ये एक आशावादी जो आशा का मन भी उनके अंदर था। Dr. Kalam served as a chief scientific advisor to the Prime Minister and a secretary of DRDO from July 92 to December 1999। तो डॉक्टर कलाम एक चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में प्राइम मिनिस्टर के लिए और DRDO का जो सेक्रेटरी है उनके लिए जुलाई 1992 से लेकर के दिसंबर 99 तक वो रहे, एक सलाहकार के रूप में, एक एडवाइजर के रूप में रहे। He served as the 11th President of India from 2002 to 2007. He was the first scientist to become President of India. तो भारत में 11th प्रेसिडेंट के रूप में वो चुने गए, जो 2002 से लेकर के 2007 तक रहा और वो पहला साइंटिस्ट, मतलब वो पहला राष्ट्रपति बने जो कि एक साइंटिस्ट थे। उससे पहले कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं था जो कि एक साइंटिस्ट होकर के प्रेसिडेंट बनता है। डॉक्टर कलाम also received the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, before he was selected as the president. डॉक्टर कलाम जो है वो भारत रत्न को प्रेसिडेंट होने से पहले ही क्या कर चुके थे, प्राप्त कर चुके थे। डॉक्टर कलाम रिमेम्बर्ड ऑन द प्रेसिडेंट एस्टेट इन न्यू दिल्ली फॉर डिजिटाइजेशन of the library, tactile garden of the visually challenged, a health center, street lights pavement, new staff quarter, and above all for opening the Rashtrapati Bhavan to everyone. तो डॉक्टर कलाम जो है राष्ट्रपति भवन जहाँ पे उनको पहली बार वो जहाँ पे रहे, वो सबके लिए अपने दरवाज़ा को खुला रखे थे ताकि कोई भी विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति हो सकता है या तो फिर और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो जाकर के उनसे मिल भी सकता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कलाम्स पर्सनैलिटी वाज हिज एसेंशियल सिंप्लिसिटी, हिज चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म एंड हिज मॉडेस्टी डिपिक्ट ऑल द accolades he received for his work। तो डॉक्टर कलाम के जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि उनके लाइफ बिल्कुल सीधा साधा था। यद्यपि एक साइंटिस्ट थे वो, यद्यपि एक ज्ञानवान व्यक्ति थे वो, लेकिन एक बच्चा जिस प्रकार एंथुसियाज्म मतलब उत्साहपूर्ण होकर के रहता है और ऐसे ही वो हुआ करते थे। साथ ही साथ वो एक मॉडेस्टी भी थे और ख़ास करके अपने जो कार्य को उन्होंने जो कार्य को प्राप्त किया उसको पूर्ण करे बिना नहीं छोड़ते थे। नो अदर पब्लिक फिगर एंडेयर्ड हिमसेल्फ टू ऑल सेक्शन ऑफ द कंट्री एज ही डिड। मतलब पब्लिक सेक्टर के लिए
जो भी करना चाहिए था, उनके द्वारा जो भी कुछ संभव हो पाया वो सभी उन्होंने किया। He was an educator par excellence and believed that educational opportunities must be created for all children, as it was the most powerful tool in alleviating poverty। वो इस बात को विशेष जोर देते थे, एजुकेशन जो है वो उनके हिसाब से मूल मंत्र था, है ना। तो किसी भी तरह से जो यंग चिल्ड्रन होते थे उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, और ये अच्छी शिक्षा ही क्या कर सकती है कि जो प्रॉपर्टी है, गरीबी हालत है, उसको क्या कर सकती है, वो दूर कर सकती है। वो इस प्रकार का विचार क्यों रखते थे? क्योंकि वो खुद एक एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर उनकी रुचि ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने भी यही चाहा कि देश के सभी नागरिक जो है वो सुशिक्षित हो, और साथ ही साथ देश में जितने बच्चे हैं वो भी सुशिक्षित रहे, सबको शिक्षा दी जाए और गरीबी को हटाया जाए। His message to children always resonated his belief that a student should be provided with the wings to fly। बच्चों को हमेशा वो उत्साहित किया करते थे, और साथ ही साथ वो कहते थे बच्चों को पंखड़ी देना चाहिए, ताकि पंख देना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, उड़ सके। He strongly believed in the role of a teacher in shaping young minds। वो पूर्ण रूप से इस बात को विश्वास करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बच्चों को ढाल सकते हैं, उनको शेप दे सकते हैं। टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों को बना सकता है, बच्चों को ढाल सकता है ना। He had once said creativity is the key to success in the future, and primary education is where teacher can bring creativity in the children at that level। तो वो यही कहते हैं, एक समय पर उन्होंने ऐसा कहा कि क्रिएटिविटी जो है वो सक्सेस होने का, सफल होने का एक चाबी है, और जितने भी प्राइमरी टीचर्स से वो क्रिएटिविटी के द्वारा ही बच्चों को उभर के लेके आए, और क्रिएटिविटी का लेवल को वो और भी महत्व दे, उसको और भी बढ़ाए, ताकि बच्चे जो है क्रिएटिव माइंड में हो जाएंगे, और ये क्रिएटिव माइंड ही उनका भविष्य को क्या करेगा, बढ़ाएगा। He kept meeting students whenever and wherever he could, urging them to break free for shackles of property। वो अपने बच्चों को, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, और अक्सर वो जहाँ कहीं भी जाते थे और वो बच्चों से मिलते थे, चाहे वो गरीब बच्चे हो, चाहे वो अमीर बच्चे हो, किसी भी प्रकार के बच्चे हो, ऐसा कोई भी मतलब उनके अंदर भेदभाव नहीं था। Poverty, traditional and ignorance motivating them to dream big and aim for the sky। ऐसे जो प्रॉपर्टी में थे, जो गरीब बच्चे थे, उनके अंदर वो एक ड्रीम को जागृत करवाते थे, ताकि वो भी आसमान को देखे। He wanted the student to question, to explore, to develop the confidence and courage to think big and live their dreams। बच्चों के अंदर वो मतलब प्रश्न, जो क्वेश्चन को मतलब बढ़ाना चाहते थे, ताकि बच्चे सवाल करें और वो भी, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो, उनके अंदर भी हिम्मत पैदा हो, और साथ ही साथ वो भी अपने ड्रीम को लेकर के आगे बढ़े, अपने ड्रीम को लेकर के आगे चल सके। He was an optimist who saw in the numerous opportunities at every corner and believed earnestly that India could be one of the most developed nations of the world if we harnessed our talent, made us our opportunity,
and pursued a path of common sense. तो वो इस बात को विश्वास करते थे, वो एक ऑप्टिमाइज्ड व्यक्ति थे। ऑप्टिमाइज्ड बोले तो आशावादी, है ना, वो एक आशावादी व्यक्ति थे और उनके अंदर मतलब वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को अपने जीवन में प्राप्त किया है और उन्होंने इस बात को विश्वास किया है कि एक समय आएगा हमारा जो देश है वर्ल्ड में एक डेवलप्ड नेशन की तरह उभर के सामने आएगा। और ये तभी संभव हो सकता है जब यहाँ का जो सिटीजन है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, जब हमारे अंदर जो टैलेंट है यानी विशेष वरदान है, वो टैलेंट को जब हम समाज के सामने रखेंगे और हमारे अंदर जो टैलेंट है उसी टैलेंट के अंतर्गत जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटीज़ को पा करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तब जा कर के भारतवर्ष एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में और उभर के सामने आएगा, ये वो कहते थे। ही reiterated that a dream transformed into thought and thought result in action। वो इस प्रकार कहते थे कि ड्रीम जो है एक विचार को क्या करेगा, है ना, एक विचार में परिवर्तित करेगा और वो विचार जो है एक एक्शन को लेके आएगा, एक क्रियात्मक अवस्था में वो विचार परिवर्तन हो जाएगा। According to him, dreams are not those which come while we are sleeping, but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them। है ना, ड्रीम वो नहीं है जो हम रात को सोते समय जो सपना को देखते हैं। ड्रीम तो वो है जो आप बिना सोए जगे रहते हैं जब तक आप उसको पूरा नहीं करते हैं, जब तक आप उसे पूरा नहीं करते हैं। डॉक्टर APJ कलाम सेट a target of interaction with almost 100,000 students in the 2 years after his resignation from the post of scientific advisor in 1999 में जब वो अपने एडवाइजर के रूप में जो पद था उनका, उसी पद से रिजाइन देने से पहले वो लगभग 10,000 स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर चुके थे। ही सेड आई फील कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ यंग पीपल पर्टिकुलरली हाई स्कूल स्टूडेंट। वो कहते हैं कि मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ इन हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ। Henceforth, I intended to share with them my experiences, helping them to ignite their imagination and preparing them to work for developed India, for which the roadmap is already available। साथ ही साथ वो कहते थे मैं उन बच्चों को दिशा निर्देश देना चाहता हूँ, उन बच्चों को मैं मार्गदर्शन देना चाहता हूँ, उनको मैं मतलब उनका जो इमेजिनेशन है ना, उनका जो इमेजिनेशन है उसको मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ ताकि ये डेवलप्ड इंडिया के प्रति वो कुछ कर सके, जिसके लिए ऑलरेडी मार्ग तैयार है, रोड मैप तैयार है। He was an inspiring and a visionary leader who wanted young people to have courage to think differently, to invent, to travel the unexplored path, to discover the impossible, to solve problems and to success। तो ये जो यंग जनरेशन है, इस यंग जनरेशन को वो ऐसे एनकरेज करना चाहते थे कि ऐसे मार्ग को खोज करे जो असंभव दिखता है और खोज करते करते उसको क्या करे, संभव करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सक्सेस की ओर आगे चले।
He motivated the student to be active and take on responsibilities and to work for the things. वो जवान बच्चों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद देते हैं. They believed in and not surrender to fight. He was a nation builder in the true sense of the term and transcended caste, region, religion and language. वह एक नेशन बिल्डर थे. उनके आगे धर्म, जाति, भाषा कोई मायना नहीं रखता था, यानी सबको एक नज़र में देखने वाले व्यक्ति थे. डॉक्टर कलाम वाज पोर्ट्रेट who pondered seriously about how technology can help common man, the disabled and disadvantaged section of society. ये सोसाइटी में जो आम लोग हैं और जितने सारे डिसेबल्ड कंडीशन है, जितने सारे डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, साइंस कैसे उनको मदद कर सकता है, साइंस कैसे उसको आगे बढ़ा सकता है, ये सभी के बारे में भली भांति वो समझाते थे. When he realized that the contemporary sent a small extendable tube and inserted to facilitate the smooth flow of blood in a heart patient cost 60,000, he decided to make a prototype at a much lower cost. He made safe with Dr. Sam Raju, and the two scientists developed the Kalam Raju stent, a low-price, safe and effective device that has been used successfully to help many patients. जो हार्ट के पेशेंट थे उनके लिए उन्होंने एक विशेष करके कलाम रेजू स्टेंट ऐसे कुछ आविष्कार किया जिसको लो प्राइस में दिया, जिसके चलते हजारों लोगों के जीवन बच गई. Dr. Kalam was a great thinker and a writer. The most famous of his books are Winds of Fire, Ignited Minds, or Unleashing the Power, Winning India, My Journey, Transforming Dream into Action, Mission of India, Inspiring Thought and Indomitable Spirit. यही कुछ उनके लेख थे. एक अच्छे थिंकर भी थे और साथ ही साथ एक अच्छा लेखक भी थे. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए. जाने से पहले फिर से कहता हूँ, अगर कोई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले. थैंक यू. मे गॉड ब्लेस यू.